قصیدہ آج ہم اس ویڈیو میں صرف قصیدہ پہ گفتگو کریں گے۔ لفظ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لفظ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قصیدے کی تعریف: قصیدہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی بزرگان دین یا بادشاہ کی مدح یا ہجو کی گئی ہو۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ اس کے معنی پر۔ تو قصیدہ جو ہے اس کے لغوی معنی غلیظ مغز کے ہوتے ہیں۔ غلیظ مغز، یہ غلیظ مغز جو ہے گاڑھا گودھا کے نام سے جانا جاتا ہے، چونکہ یہ جو ہے اس میں الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ بہت ہی پرشکوہ الفاظ ہوتے ہیں۔ پرشکوہ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ شاعرانہ کمالات میں اس میں شاعر پورا جو ہے زور زبان پر دیتا ہے، اس لیے قصیدہ کو جو ہے غلیظ مغز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک اصطلاحی معنوں میں ایک قصیدہ جو ہے لفظ عربی زبان کے قصد سے نکلا ہوا ہے۔ یہ اس کا پروننسیشن بعض لوگ قصد پڑھتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، لیکن چونکہ مستعمل ہے یہ لفظ قصد ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، یعنی کہ شاعر جب کسی بادشاہ یا بزرگان دین کے تعریف میں اشعار کہے گا تو پہلے ارادہ کرے گا، اس لیے اس کا نام جو ہے لفظ قصد سے بھی مشتق بتایا جاتا ہے۔ اگر ہم قصیدے کے اقسام کی بات کریں تو قصیدہ جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جو ہے تمہیدیہ اور دوسرا خطابیہ۔ تمہیدیہ اور خطابیہ کو سمجھنے کے لیے اگر سب سے پہلے ہم اجزاء ترکیبی کا سہارا لیں تو یہ بہت جو ہے واضح ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے یہ خطابیہ اور تمہیدیہ۔ تو اجزاء ترکیبی میں پہلا جو اشعار شاعروں نے عربی میں تشبیب کے اشعار رکھتا ہے، تو پہلا جو ہے یہ اجزاء ترکیبی میں تشبیب، پھر نمبر 2 پہ گریز، نمبر 3 پہ مدح، اور نمبر 4 پہ طلب، دعا بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور پانچواں جو ہے یہ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو شاعر جب اپنے قصیدے میں بغیر تشبیب کے اشعار کہے ہوئے ڈائریکٹ جو ہے مدح پہ اگر وہ آ جاتا ہے تو اس طرح کا قصیدہ جو ہے وہ خطابیہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر جب تشبیب کے اشعار نہ کہہ کر کے ڈائریکٹ جو ہے مدح کرنا اسٹارٹ کر دے، شروع کر دے، تو اس طرح کے قصیدے کو خطابیہ قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تمہیدیہ۔ تمہید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنے کلام میں کچھ نہ کچھ تشبیب کے اشعار جو ہے بیان کر کے اصل مدح کی طرف آئے، تو اس طرح کا قصیدہ تمہیدیہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں لفظ تشبیب کے کیا معنی ہے، کیا ہے یہ۔ چونکہ عربی زبان میں یہ تشبیب کے جو معنی ہوتے ہیں وہ شباب کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ تشبیب کے معنی شباب کی باتیں یا حسن و عشق کی باتیں، حسن و عشق کی باتیں۔ چونکہ عرب قصیدہ لکھنے سے پہلے اپنے عاشق یا محبوب کے شان میں کچھ حسن و عشق کا تذکرہ کرتا تھا، یا اس کے شباب، جوانی، قد و قامت، لب و رخسار، ان سب چیزوں کا تذکرہ کرتا تھا، اس لیے اس طرح کے اشعار جو ہے تشبیب کے اشعار کہے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ لفظ غزل جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہی جو تشبیب کے اشعار ہیں آگے چل کر کے جو ہے غزل جیسے صنف سخن کو جنم دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ سوال پوچھا بھی گیا ہے کہ غزل جو ہے کس صنف کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، تو یہ لفظ غزل جو ہے یہی تشبیب کے اشعار آگے چل کر کے جو ہے جنم دیتے ہیں غزل صنف کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تشبیب کے اشعار ہو گئے۔ قصیدے کے تمہیدیہ اور خطابیہ قصیدہ بتایا۔ اب بات کرتے ہیں قصیدے کی حیت پر بات کرتے ہیں۔ تو قصیدے کی حیت جو ہے غزل کی حیت ہی کی طرح ہوتی ہے، یعنی کہ بہت ساری چیزیں جو ہے غزل اور قصیدے میں مشترک ہیں۔ جیسے لفظ مطلع کی اگر بات ہم کریں تو مطلع دونوں میں ہوگا،
गज़ल का भी होगा और कसीदे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये लफ्ज़ मतला क्या चीज़ होती है। तो मतला के लुग़वी माना अगर हम देखते हैं, मतला के लुग़वी माना होता है तोलू होने की जगह, तोलू होने की जगह। चूँकि शायर अपने गज़ल या कसीदे की शुरुआत जो है इन्हीं मिसरों से करता है, इसलिए हम इसको मतला कहते हैं। इस्तिलाही मानों में अगर देखा जाए तो मतला जो है ऐसे गज़ल का पहला शेर या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िये का एहतमाम हो, रदीफ़ और काफ़िया पाया जाए, तो ऐसे शेर को हम जो है रदीफ़ और काफ़िया पाया जाता है तो हम ऐसे शेर को मतला कहते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है गज़ल और कसीदे में। मतला दोनों में पाया जाएगा, लेकिन मतले के बाद जो एक अगर मतला गज़ल में दूसरा मतला अगर इस्तेमाल हो जा रहा है, दूसरा मतला, तो हम ऐसे मतले को जो है हुस्न मतला या ज़ेब मतला या सानी मतला के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। गज़ल में जो मतला इस्तेमाल होता है वो एक ही मतले के बाद जस्ट दूसरा मतला आ जाता है, ये जो है गज़ल में होता है। लेकिन कसीदे में इस तरह का मतला नहीं पाया जाता। कसीदा निगार एक मतला कहने के बाद चंद अशार कसीदे के अशार और सारे कहेगा, उसके बाद बीच में कोई ना कोई मतला आएगा। तो जिस कसीदे में एक से ज़्यादा मतले का इस्तेमाल हो जाता है, हम ऐसे कसीदे को जो है ज़ुल्म मकाले कहा जाता है, ज़ुल्म मकाले। तो हियत दोनों की सेम है। मतले की बात करें तो हमने बताया कि गज़ल में एक मतले के बाद जस्ट सानी मतला या ज़ेब मतला वो तुरंत आ जाता है, लेकिन कसीदे में जो है कुछ अशआर के बाद मतले का इस्तेमाल होता है। फिर दूसरी बात तखल्लुस के सिलसिले से, जो गज़ल में मक्ते का अशार होता है, मक्ते का जो शेर होता है, उसमें शायर आज़ाद है। शायर गज़ल में भी आज़ाद है, कसीदे में भी आज़ाद है, कहीं भी अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर सकता है। और जिस शेर में तखल्लुस का इस्तेमाल हो जाता है, ऐसे शेर को हम मक्ते का शेर कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर बेशतर शुअरा ने गज़ल में जो है मक्ता लास्ट के मिसरों में रखा है, इसीलिए कह भी दिया जाता है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मक्ते का शेर कहलाता है। बाकी हियतें सेम हैं। अब बात करते हैं गज़ल पर और कसीदे के अशार की जो है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने अशार होते हैं। तो इसमें कसीदे में जैसे कि गज़ल में कम से कम 5 अशआर का होना ज़रूरी है। ये गज़ल के सिलसिले से है कि कम अज़ कम 5 शेर का होना ज़रूरी है। गज़ल में कम से कम कसीदे में कम से कम 21 अशआर होना चाहिए। ये गज़ल के लिए कहा जाता है, कम से कम 21 अशआर पर वो कसीदा मुश्तमिल हो। इसमें फिर बात करते हैं, ये तो बात हो गई इसकी हियत और टेक्निक पर। देखिए सबसे पहले देखते हैं इसमें काफ़िया और रदीफ़ क्या होता है, क्योंकि इससे मुतालिक अभी हम तशबीह और गुरेज पर बात करेंगे। काफ़िया हम आहंग अल्फाज को कहा जाता है, हम आहंग अल्फाज यानी कि ऐसे लफ्ज़ों का मजमूआ जिसकी आवाज़ सेम हो। जैसे हम मिसाल गज़ल का एक शेर हमने लिखा कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो इसमें जो है ये मतले का शेर है, गज़ल का मतले का शेर है, इसलिए दोनों मिसरों में ये रदीफ़ इस्तेमाल हो रही है, क्या है क्या है। तो रदीफ़ जो है सेम होती है। गज़ल का भी और कसीदे का भी थोड़ा सा फ़र्क जो हम बाहर से करना चाह रहे हैं वो यही है कि मतला जो है सेम होता है, वो गज़ल का मतला हो या कसीदे का। जैसे ये इसमें ये क्या है ये लफ्ज़ रदीफ़ है। काफ़िये की बात करते हैं तो ये जो है हुआ और ये दवा, ये जो है हम आहंग अल्फाज है। और काफ़िये की बुनियाद जो है जिस हर्फ पे होती है, ये लफ्ज़ अलिफ
इसको हम कहते हैं हर्फ रबी। ये जो है हर्फ रबी कहलाता है। क्योंकि आज आगे इसकी बात है कि पूछा जाता है एग्जाम में कि कसीदा लामिया क्या होता है। कसीदा लामिया, तो ये बात करना यही है कि कसीदा लामिया ऐसा कसीदा कि जिसमें हर्फ रबी जो है, यही मतलब हर्फ रबी जो ये है लाम पर कसीदा, लफ्ज़ लाम पर ख़त्म होता है। तो इस तरीके से जो है, जैसे सौदा का कसीदा या ज़ौ का कसीदा, तो इस तरीके के बहुत सारे कसाइद मिलेंगे कि अगर वो हर्फ रबी शायर ने लाम मीम अलिफ से जो है अगर वो काफिया ख़त्म होता है, तो इस कसीदे पर जिस तरीके से जो है, जैसे लफ्ज़ लाम पर ये कसीदा ख़त्म हुआ, तो इसको हम कसीदे लामिया कहते हैं। थोड़ी सी बात करनी थी, ये तशबीब क्या होता है, डिफिनेशन पूछी गई है। तो तशबीब का असल ताल्लुक जो है माहौल साजी से होता है, यानी कि फरमारवाए वक्त की शान में या बुजुर्गान दीन की शान में जो मदा की जाती है, तो डायरेक्ट मदा ना कर करके पहले माहौल बना क्रिएट किया जाता है, जिसको माहौल साजी कहते हैं। अच्छा, इसका भी थोड़ा मौजू के एतबार से कभी जो है बहार का तस्करा हो जाता है, कभी जो है एक सिंफ है शहर आशोक या जो है हज्म, इस तरीके के अशार आते हैं। तो बाद में उसके कसीदे की अक़साम में ये चीज़ें आ जाती हैं कि कसायद और कितने किस्म की होती हैं। तो अगर शायर अपने तशबीब के अशार में बहार का तस्करा कर देता है, तो इस तरह का जो है कसीदा बहारिया कसीदा कहलाता है। बहारिया कसीदा इस तरीके से अगर किसी शहर की तबाह व बर्बादी का जो है तस्करा हो जाए, तो वो जो है कसीदा शहर आशो कहलाता है। जैसे सौदा का कसीदा, कसीदा दर शहर आशो, ये नज़्म के उन्वान में आता है, लेकिन ये इस तरीके का एक हज्व है या हज्विया कसीदा कहलाती है। ये शुरुआत में बात हमें बता देनी चाहिए थी कि कसीदे का ताल्लुक जो है किसी भी बुजुर्गान दीन की मदह या हज्व से मुतालिक होता है। इसीलिए कह भी दिया जाता है कि कसीदा दो किस्म का होता है। एक कसीदा जो है मदहिया कसीदा, एक कसीदा जो है जिसमें मदह की जाती है मदहिया कसीदा, और दूसरे किस्म का कसीदा जो है हज्विया कहलाता है। ये जो है हिजविया भी लफ्ज़ सही है और हज्विया भी, यानी कि किसी की बुजुर्गान दीन या बादशाह की जो है हज्व होती है, यानी कि उसकी बुराई का, बद अखलाकी का, बद किरदार का तस्करा होता है, बुराई का तस्करा। ये भी जो है कसीदे ही के ज़िम्मे में आता है। दूसरा है, एक सवाल पूछा गया था गुरेज के क्या माना होते हैं, या गुरेज का एक दूसरा लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है। तो ये गुरेज जो है इसको दूसरे लफ्ज़ों में मुखल्लस के नाम से हम जानते हैं। और गुरेज उस अशार को कहते हैं कि जब शायर तशबीह के अशार जो है ख़त्म करके असल मदह की तरफ आना चाहता है, तो एक या दो शेर रब्त देने के लिए गुरेज का जो है सहारा लेता है। तो इस तरह के शेर गुरेज कहलाते हैं।